In the first part of this vlog, you will see me in the Delhi High Court, and in the later part of this vlog, you will see me in my office preparing for a case the next day in which arguments are listed. Again in the Delhi High Court, this time I was appearing through VC for a matter in Rohini, in which the Honorable Judge, the learned MM, suddenly wanted the accused to appear in person, and therefore the accused had to run there. But I somehow requested that I can only appear online as I am in the High Court today. So those are the kind of practical problems you continue to face. In case you want to inspect any court file at the Delhi High Court, you have to give an application beforehand, that is before 12 noon. Criminal sides इंस्पेक्शन यहाँ से जाके मुझे इंस्पेक्ट करनी है 2-3 फाइल्स, और उसके बाद देखते हैं. वैसे सिविल साइड का जो इंस्पेक्शन है वो आपको दिल्ली हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार कोर्ट के एकदम नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पर मिल जाता है, बट क्रिमिनल साइड का आपको एक्सटेंशन ब्लॉक में मिलता है. तो डोंट गेट कन्फ्यूज अगर आपको कोई एक्सटेंशन ब्लॉक के कोड्स बताए. कोर्ट नंबर 26 के नीचे आपको अगर फाइल इंस्पेक्ट करनी है, वहाँ से एक स्टेयर्स हैं जहाँ से निकल के आप करने आ सकते हो. लेट मी इंस्पेक्ट द फाइल एंड गेट बैक टू यू गाइस. If you have seen the yesterday's vlog, I think you may remember my disappointed face that you saw in this parking only, in this Delhi High Court's parking yesterday. I was told, no, it's okay, you can park. Today, when I inspected the file, I got really shocked, disappointed, and you can say happy as well. And I got happy at the fact that we were not wrong. Reason being, our petition was not filed with a wrong title. In fact, there was some error, there was some typographical error in the title, which was later changed when registry notified the defects. Additionally, it was informed to us by the Council for the States Council, that we haven't supplied any copy to the States Council. I was shocked क्योंकि हाई कोर्ट में ऐसा हो नहीं सकता कि एडवांस कॉपी दिए बिना कोई भी मैटर फाइल हो जाए, और अगर ऐसा आप कर भी दो तो रजिस्ट्री आपको डिफेक्ट दे देती है कि आपको एडवांस कॉपी पहले फाइल करनी थी. मैंने जब ये चीज़ हमने कल भी कोर्ट में इन्फॉर्म करी थी, और जब हमने आज ये चीज़ देखी कि कोर्ट के पास जो फाइल है उसमें स्टेट के काउंसिल की स्टैम्प है, सिग्नेचर है कि उनको कॉपी रिसीव हुई है, और इनफैक्ट बाकी काउंसिल्स के भी सिग्नेचर हैं, जितनी भी पार्टीज़ के काउंसिल्स हैं. तो आई डोंट नो वो बात कल कैसे कही गई, क्यों कही गई, किस लिए कही गई. Yesterday only final arguments on the case could have happened, but they did not take up the arguments. Now the next date is on. Wait for a while. I bet this information is worth listening, and that is because Unacademy has now launched their PCSJ courses, and now if you are a Vlogish subscriber, you will even get an additional 10% off on the prices that are already discounted. अगर आपको लगता है कि आपको जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, बट यू आर नॉट श्योर कि अगर अभी आपको कोई हेल्प चाहिए या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन की हेल्प या असिस्टेंस चाहिए, तो यू कैन एटलीस्ट ट्राई द फ्री टेस्ट, द फ्री सीरीज़ दैट अनअकैडमी इज़ ऑफरिंग टू यू. Not only that, but they are also offering free special classes specially curated for PCSJ exam every day. And these classes are on all the subjects you can think of. Those are related to law, and those are related to every possible PCSJ aspect. So in case you think you are somebody who needs some guidance, or you need some free classes, some trial, go to the description box, check the link given in the description box. I also recommend Unacademy because of their amazing mentorship program, and that's one-on-one live mentorship. That means अगर आपको कभी कोई डाउट आया तो आप डेफिनेटली एक मेंटोर के साथ सेशन बुक करके उसको पूरा डिस्कस करके सॉर्ट कर सकते हो. और ये डाउट्स आपके लिए सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होंगे, बल्कि ये इतने पर्सनलाइज्ड होंगे कि आप उनसे अपने करियर के बारे में, अपने फियर के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में भी शेयर कर सकते हो. नाउ प्राइजेज आपकी स्क्रीन पर हैं. अगर आप कोर्स लेते हो तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कोड VLOGISH. I left the Delhi High Court in the afternoon, that is around evening only, around 4 p.m. and because I was crossing an area which is near my school, I thought I should show you definitely my school, the area where I studied up till 12th standard. So that definitely gave me nostalgia. इस बात से हो रहा है, अगर पुलिस की रिपोर्ट को अगर सही से देखा जाए तो दे आर सेइंग, इवन द कंप्लेंट इज सेइंग दे इन्फ्रिंजमेंट है, वो सॉरी काउंटरफीट मीटर बेच रहा है. काउंटर सेक्शन 63 तो कहीं से अट्रैक्टिव नहीं होता, तो किस बात की शक उन्होंने वो करी है. हो सकता है जज को भी बात पता ना हो, तभी लिया नहीं पता. देखो 207 का प्रोसेस कर दिया इन्होंने पूरा. ये 8 मार्च 2021 से पहले ली जा चुकी है. वैसे तो CRPC स्केड्यूल 2 में क्लियरली रिटन है कि कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं और कौन से नॉन कॉग्निजेबल हैं, बट
फिर भी कई बार ये प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं ऐसे केसेस में जहाँ पे पनिशमेंट क्लियर नहीं होती है। इशू ऑफ प्रोसेस पे आते हो ना जब, तो उसमें 204 है। 204 कहता है इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग एंड द केस अपीयर्स टू बी अ समन केस, अ वारंट केस, ही मे इशू अ वारंट और इफ ही थिंक्स फिट समन फॉर कॉजिंग द एक्यूज्ड टू बी ब्रॉट और अपीयर एट अ सर्टेन टाइम बिफोर द सच मजिस्ट्रेट। ठीक है, नो सच समन और वारंट शैल बी इशूड अगेंस्ट द एक्यूज्ड अंडर सबसेक्शन 1 अंटिल अ लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज बीन फाइल्ड कर रखी है। सम्मन या वारंट इशू करने का तो मतलब ही ये है ना कि इन अ प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेंट, ये तो लगे व्हेन बाय एनी लॉ ऑफ द फॉर द टाइम बीइंग फोर्स एनी प्रोसेस फी और अदर फीस, नो प्रोसेस फी शैल बी, ये तो अलग चीज़ है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ 87। रीड करूँ। Further, it is well settled that the trial court, while considering the discharge application, is not to act as a mere post office. The court has to sift through the evidence in order to find out whether there are sufficient grounds to try the suspect. The court has to consider the broad probabilities, total effect of evidence and documents produced, and the basic infirmities appearing in the case, and so on. और हमारे में तो ये basic infirmity है. Likewise, the court has sufficient discretion to order further investigation in appropriate cases if need be. The High Court has committed jurisdictional error by not entertaining the revision petition on merits and overlooking the fact that discharge is a valuable right provided to the accused. All in all, you may conclude that how we present in the court is a product of our research and hard work. It's almost 8 p.m. and I'm leaving the office after completing all the work for the day. You saw how previous 2-3 days, almost this entire week went. It went into drafting, then preparing for arguments, then being unable to deliver arguments because of certain technical reasons that were not even justified on technical points. But whatever it was, this week is coming to an end tomorrow. It's a Saturday tomorrow, and tomorrow I will meet you in continuation of this vlog, I mean in the next vlog. Also tomorrow I have tickets to go visit the program being conducted by the Delhi government at the JLN Stadium. अम्बेडकर जी की लाइफ पर एक प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ भी हम जाएंगे कल, आपको देखते रहना है what happens throughout the day tomorrow. Let's see कि डिस्चार्ज वाले केस में हम कोर्ट को कितना सेटिस्फाई कर पाते हैं. एनीवे, लेट्स होप द बेस्ट फॉर टुमारो. जैसे कि मैं बोलती हूँ कि शब्द ही सिद्धि है, वो ही बोलो जो देखना चाहते हो, तो वही बोलती हूँ जो देखना चाहती हूँ. आई विल मीट यू ऑल टुमारो अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट. बाय फॉर नाउ. और सुनो, अगर किसी चीज़ में लगे हो, अगर अभी सक्सेस नहीं मिल रही है, अगर कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उस दिन खुद को क्वेश्चन कर ले रहे हो कि क्या मैं बहुत गलत हूँ, तो मेरे पिछले 2-3 ब्लॉग्स देख के एटलीस्ट ये सीख लेना. हर कोई इंसान है यार, हर कोई वो क्वेश्चन कर देता है. यू आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. और अगर वो कर दिया है आपने आज भी, तो सिर्फ इतना सा समझ लेना, सीख लेना मेरे भी इस एक्सपीरियंस से छोटे से, कि अपने आप को, अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी चॉइसेस को बहुत जल्दी क्वेश्चन मत करना. क्वेश्चन कर भी रहे हो तो अपने उस क्वेश्चनिंग पे ही थोड़ी सी रिसर्च कर लेना. हो सकता है कि आपका माइंड ही गलत कह रहा हो एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक. तो जो भी कर रहे हो करते रहो, लगे रहो. पुट इन सम मोर हार्ड वर्क, पुट इन सम मोर एफर्ट्स एंड पुट इन सम मोर पॉजिटिव थॉट. अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा कहो, अच्छा करो. अगर शुरू में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं भी मिल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती नहीं भी दिख रही हैं, तो भी उसमें अपना उतना ही परसेंटेज दो, 100% ही दो. अपनी तरफ से एक्सीलेंट चीज़ डिलीवर करो. आई एम श्योर जो भी आप लोग चाह रहे हो वो होगा ही होगा. आई ऑल्सो बिलीव इन दैट एंड आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू बिलीव इन दैट. ऑफकोर्स अगर आप चाहते हो तो फोर्स तो कौन ही कर सकता है. अब चलते हैं घर.